Hello my dear viewers, I am Anwar Hussain Barbiya. Welcome you to your channel AHB Physics. We are studying class 12 physics, and in class 12 we are studying alternating current. In alternating current we have already gone for 6 lectures. So up to this what we have studied? We have studied AC voltage applied to resistor, AC voltage applied to inductor, and AC voltage applied to capacitor. Now what we will do, we will study AC voltage applied to a series LCR circuit. So in this what we will study means we will have an AC circuit, and in this AC circuit we will connect resistor, inductor and capacitor, all these 3 components in series. Now if we connect resistor, inductor and capacitor in series to an AC source, then what will be the instantaneous current and what will be the phase relationship? What is the phase relationship? Phase relationship is phi. So it is the angle between voltage and current, that is cos phi. तो ये जो phi angle है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Instantaneous voltage is for resistor it is Vm sin omega t. For resistor the current is Im sin omega t. For inductor the voltage is Vm sin omega t, current is Im sin omega t minus pi by 2, and for capacitor it is Vm sin omega t, current is Im sin omega t plus pi by 2 है. So what is the angle for resistor? The phase angle between voltage and current is 0. For inductor the phase angle is minus pi by 2. For capacitor the phase angle is plus pi by 2. That means in resistor the voltage and currents are in phase. In inductor the current lags the voltage by an angle of pi by 2, and in capacitor the current leads the voltage by an angle of pi by 2. ठीक है, तो इन तीनों कंपोनेंट्स को अगर हम लोग सीरीज में एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, then what will be the instantaneous current and the phase angle that we are going to derive in this expression. Suppose we have an AC circuit, say this is an AC circuit, and in this circuit we are connecting a resistor, an inductor and a capacitor. We are connecting a resistor, inductor and a capacitor in series. So this is the resistor having resistance R, inductor having resistance L, capacitor having capacitance C. They are connected to a source of EMF. Suppose the source of EMF is E. So they are in series. So in series combination the current across each component is same. So we are considering the current in the circuit is I. Suppose the current in the circuit is I. So from where we start? Consider a circuit containing a resistor, inductor and a capacitor, resistor, inductor and a capacitor connected in series as shown in figure. So हमारा फिगर में ये पता चल रहा है कि we are considering a circuit, and in this circuit we have a resistor, inductor and a capacitor. This they are connected in series as shown in figure. Suppose the instantaneous voltage supplied by the source is instantaneous voltage supplied by the source is V is equal to Vm sin omega t. So the instantaneous EMF is E, and say the instantaneous potential difference is V equal to Vm sin omega t. So what we have to do? Applying KVL in the loop. We have, so what is the KVL? The algebraic sum of potential difference in the loop is 0. So the supply, so this is the supply, source minus losses will be equal to 0. तो source का potential difference कितना है? Source का potential difference है Vm sin omega t minus the voltage drop across resistor. resistor का voltage drop कितना होता है? resistor का voltage drop है IR. inductor का voltage drop कितना होता है? L di by dt माइनस कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? Q by C will be equal to 0. So we can say that the instantaneous voltage of source Vm sin omega t will be equal to IR plus L di by dt
plus Q by C. Say we are considering it as equation 1. So this is the voltage equation. Now हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए instantaneous current. What we need? We need instantaneous current. Instantaneous current. Say the instantaneous current is I. So what is the instantaneous current? That is our aim. And second is we are going to find out the phase angle. That is the phase angle between the voltage and current. तो ये दोनों चीज़ हमें निकालना है. To determine the instantaneous current, and the phase relationship between the applied voltage, between the voltage भी लिख सकते, between the voltage and current. To determine instantaneous current and the phase relationship between voltage and current, there are two methods. तो इनको निकालने के लिए दो methods है. What are the different methods? The first method is phasor diagram solution. And the second method is analytical solution. So these are the two methods of determining analytical solution. So these are the two methods of determining the instantaneous current and the phase angle between the applied voltage and the current. So in this class we will do the phasor diagram solution and the analytical solution will come with another lecture. ठीक है. So पहले आप यहाँ तक pause मारिए, जल्दी जल्दी लिखिए. कहानी आपको समझ में आया? यहाँ पे एक सर्किट है, इस सर्किट में एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है. ये तीनों चीज़ को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है. तीनों को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, सपोज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज Vm sin ओमेगा t, तो लॉसेस क्या होगा? रेजिस्टर का IR है, LdI/dt है इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए Q/C है. सो सप्लाई माइनस लॉसेज विल बी इक्वल टू 0. दिस विल गिव यू द KVL इक्वेशन और यू कैन से इट इज द वोल्टेज इक्वेशन. Then we are going to find out the instantaneous current and the phase angle between voltage and current. तो instantaneous current और phase angle इनको निकालने के लिए दो मेथड है. पहला मेथड जो है इट इज़ फेजर डायग्राम सॉल्यूशन है और दूसरा मेथड जो है वो है एनालिटिकल सॉल्यूशन. आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फेजर डायग्राम सॉल्यूशन का जो टेक्निक है उसको हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल सॉल्यूशन. तो एग्ज़ाम में अगर आपको आता है फेजर डायग्राम सॉल्यूशन से लिखने के लिए तो आप वो एनालिटिकल सॉल्यूशन वो कहानी नहीं चाहिए. टू डिटरमिन द इंस्टेंटेनियस करंट एंड द फेज एंगल बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट वी आर यूजिंग द फेजर डायग्राम सॉल्यूशन. सो सीधा आप ऊपर में ही फेजर डायग्राम सॉल्यूशन बोल के लिख सकते हैं. ठीक है. सो अभी हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वेशन मिला है Vm sin ओमेगा t इज इक्वल टू IR प्लस LdI/dt प्लस Q/C इज इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 वहाँ पे भी डाला था क्या? नहीं डाला है शायद. सो इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 है. Now we are doing the phasor diagram solution. So in phasor diagram solution, first we'll consider the current. Suppose the instantaneous current in circuit is instantaneous current. Suppose the instantaneous current in circuit is instantaneous current. We are considering it as Im sin of omega t plus phi. Instantaneous current we are considering I is equal to Im sin omega t plus phi. What is I? It is the instantaneous current. Im is the peak value of current, omega is angular frequency, phi is the phase angle, where phi is the phase angle between the voltage and current. Let V वैक्टर, तो यहाँ पे मैं वेक्टर लिख रहा हूँ. इट इज़ नॉट वेक्टर, इट इज़ फेजर. मैंने आपको पहले ही बोला है ये वेक्टर में अगर लिखते हैं इट इज़ नॉट वेक्टर. वोल्टेज इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ फेजर. सो वोल्टेज फेजर VR वेक्टर, VL वेक्टर, VC वेक्टर एंड I वेक्टर. तो ये सारे क्या है? फेजर है. लेट V फेजर इज़ द वोल्टेज जो हमारा सोर्स है. सोर्स का वोल्टेज क्या है? V है. रेजिस्टर के ऊपर का वोल्टेज क्या है? VR है. इंडक्टर के ऊपर का वोल्टेज क्या है? VL है. कैपेसिटर के ऊपर का वोल्टेज क्या है? VC है. I क्या है? करंट, सर्किट का करंट है. इन सारे को मैंने फेजर्स में लिखा है. सो लेट दिस आर द वोल्टेज फेजर्स
आर द वोल्टेज फेजर्स, अच्छा आई को निकाल दीजिए, ठीक है, नहीं तो एक साथ नहीं लिख सकते। वी वेक्टर एंड वी सी वेक्टर आर द वोल्टेज फेजर्स ऑफ, ये किसके लिए है, सोर्स के लिए है, ये वी आर के किसके लिए है, रेसिस्टर के लिए है, एल किसके लिए है, इंडक्टर के लिए है, एंड कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, लेट वी वेक्टर इज द वोल्टेज फेजर ऑफ सोर्स, वी आर वेक्टर इज द वोल्टेज फेजर ऑफ रेसिस्टर, वी एल वेक्टर इज द वोल्टेज फेजर ऑफ इंडक्टर, वी सी वेक्टर इज द वोल्टेज फेजर ऑफ कैपेसिटर। सो वी वेक्टर, वी आर वेक्टर, वी एल वेक्टर एंड वी सी वेक्टर आर द वोल्टेज फेजर्स ऑफ सोर्स, रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली। एंड आई वेक्टर जो है इज द करंट फेजर इन सर्किट, इज द करंट फेजर। सो आई वेक्टर जो है ये क्या है, करंट फेजर इन सर्किट। द रिलेशनशिप बिटवीन वी वेक्टर, वी आर वेक्टर, वी एल वेक्टर, वी सी वेक्टर and I vector. So V phasor, R phasor, L phasor, C phasor, I phasor. So the relationship between these phasors can be represented as, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन वी विल ड्रॉ अगेन ए सेकेंड लाइन। तो ये मान लीजिए हमारा सेकेंड लाइन है, ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स है, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर आप मानेंगे तो भी चलेगा। सो दीज आर द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे वोल्टेज फेजर ऑफ सोर्स, वोल्टेज फेजर ऑफ रेसिस्टर। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी आर वेक्टर, इसका मतलब वोल्टेज फेजर ऑफ रेसिस्टर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई फेजर। तो हमें पता है रेजिस्टर के लिए वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, तो इसीलिए मैंने वोल्टेज, रेजिस्टर का वोल्टेज और करंट जो है एक ही डायरेक्शन में दिया है। फिर मैं इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का टाइम पे ख्याल रखना है, ये कितना है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वोल्टेज फेजर ऑफ कैपेसिटर। ये किसका फेजर है, कैपेसिटर का वोल्टेज फेजर है। अब हम लोग जानते हैं अगर रोटेशन ऑफ फेजर ऐसा लेते हैं तो कैपेसिटर के लिए क्या होता है, करंट π/2 एंगल आगे होता है, ये एंगल कितना है, π/2। तो कैपेसिटर के लिए करंट जो है π/2 एंगल आगे होता है। आप ऐसे रोटेशन को एज्यूम करो तो करंट जो है वोल्टेज के π/2 एंगल आगे आगे चलता है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडक्टर के लिए वोल्टेज फेजर से, ये इंडक्टर का वोल्टेज फेजर है। सो दिस इज़ इंडक्टर का वोल्टेज फेजर है, दैट इज़ वी एल फेजर है। तो इंडक्टर का वोल्टेज और करंट अगर हम लोग देखेंगे तो करंट क्या होता है, वोल्टेज से पीछे होता है इंडक्टर का, तो वो इंडक्टर के लिए वोल्टेज आगे आगे जाएगा और करंट जो है पीछे पीछे जाएगा। तो ये तीनों फेजर डायग्राम को हमने एक साथ रिप्रेजेंट कर लिया है, वोल्टेज फेजर ऑफ रेजिस्टर, वोल्टेज फेजर ऑफ कैपेसिटर, वोल्टेज फेजर ऑफ इंडक्टर विद द सर्किट करंट। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, रेजिस्टर के लिए जो करंट है, करंट क्या होता है, इट इज़ ओमेगा टी प्लस फाई एंगल पे। एंगल क्या है, करंट इज ओमेगा टी प्लस फाई एंगल पे है। सो यहाँ पे हम लोगों को एंगल क्या लिखना है, ओमेगा टी प्लस फाई है, ठीक है। अब ये जो फेजर्स है इनका मैग्नीट्यूड को हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, सो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप स्टेप्स को अच्छी तरीके से देखना, मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, और सामने आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को लेना, ठीक है। तो आप जब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सामने रख के देखना, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा वीसी वेक्टर है इसको मैंने बढ़ा लिया है, वीएल वेक्टर जो है इसको छोटा लिया है। इसका मतलब कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उसको मैंने ज़्यादा लिया है, इंडक्टर का जो वोल्टेज है उसको मैंने कम लिया है। अब ये एक दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेगा, कैंसिल करके जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, ऐसे है ना, इस पॉइंट से अगर मान लीजिए ये मेरा वीसी वेक्टर है और ये मेरा वीएल वेक्टर है, ये दोनों कैंसिल करेगा, कैंसिल करके रिजल्टेंट वेक्टर किधर जाएगा, इधर जाएगा, जो बड़ा है उसकी डायरेक्शन में जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, वी सी वैक्टर प्लस वी एल वैक्टर, है कि नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या जाएगा, इधर जाएगा। सो वी कैन एज्यूम द रिजल्टेंट ऑफ वी सी वैक्टर एंड वी एल वैक्टर इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट वैक्टर जाएगा वी सी और वी एल का, तो इसको लिख सकते हैं वी सी वैक्टर प्लस वी एल वैक्टर, ठीक है। नाउ इनके परपेंडिकुलर क्या होता है, हमारा रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रजिस्टर का वोल्टेज, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी आर वैक्टर। सो दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ रजिस्टर। इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है π/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फेज़र है इस फेज़र को यहाँ से उठा के पैरेलली यहाँ पे ले सकते हैं। एज्यूम कर लो मैं इसको उठा के पैरेलली यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो इस फेज़र को मैं उठा के यहाँ पे ला लिया, ठीक है, यहाँ पे ला लिया। तो ये फेज़र ऐसा हो गया। आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये। सो दिस इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये जो फेज़र है ये कौन सा फेज़र है, ये है वी सी वैक्टर प्लस वी एल वैक्टर है। व्हाट इज़ दैट फेज़र, इट इज़ वी सी वैक्टर प्लस वी एल वैक्टर है, ये फेज़र है, ठीक है। और ये मेरा कौन सा फेज़र है, ये हो गया मेरा सोर्स का फेज़र, मीन्स सोर्स का वोल्टेज। तो आप देखिए सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू रजिस्टर वोल्टेज प्लस इंडक्टर एंड कैपेसिटर का वोल्टेज। हम लोग ऐसे ही जानते हैं ना, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। और ये जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। सो दिस साइड प्लस दिस साइड विल गिव अस दिस साइड। सो दिस इज द सोर्स विल बी इक्वल टू रजिस्टर का वोल्टेज, इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज, हो गया। अब ये जो मेरा रजिस्टर का वोल्टेज है, रजिस्टर का वोल्टेज का फेज़र कैसा है, ये हो गया मेरा वोल्टेज फेज़र ऑफ रजिस्टर। इसका जो पीक वोल्टेज है इसका मैं नाम दे देता हूँ वी आर एम। व्हाट इज़ वी आर एम, इट इज़ वोल्टेज पीक वोल्टेज, एम का मतलब पीक है। सो पीक वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो रजिस्टर का जो पीक वोल्टेज है उसका नाम मैं कैसे देता हूँ, ऐसे। तो इसको मैं दे सकता हूँ ऐसे वी आर एम। व्हाट इज़ वी आर एम, इट इज़ द पीक वोल्टेज ऑफ रजिस्टर। और ये मेरा क्या है, सोर्स है। तो सोर्स का जो पीक वोल्टेज ऐसी ये एक साथ ड्रॉ करने के बाद आपको बहुत कन्फ्यूजन लगेगा, तो इसीलिए आप एक एक करके ड्रॉ करना है। ये मेरा कौन सा वोल्टेज फेज़र था, ये मेरा सोर्स का वोल्टेज फेज़र था। और ये मुझे क्या देगा, सोर्स का पीक वोल्टेज देगा। सोर्स का पीक वोल्टेज कितना होता है, वीएम। और ये जो पीक वोल्टेज है ये कितना है, इसको भी कहाँ से लिखो, कहाँ लिखो, ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है, इट इज़ कैपेसिटर माइनस इंडक्टर। इनका नेट क्या है, कैपेसिटर माइनस इंडक्टर है। सो दिस वोल्टेज फेज़र, दिस मैग्नीट्यूड इज़, ये कौन सा मैग्नीट्यूड है, कैपेसिटर माइनस इंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी सी एम माइनस वी एल एम, वी सी एम माइनस वी एल एम। ये कौन सा फेज़र था, ये फेज़र था वी आर फेज़र था। ये कौन सा फेज़र था, वी आर फेज़र है। ये कौन सा फेज़र है, सोर्स फेज़र है। और ये कौन सा फेज़र है, इट इज़ वी सी वैक्टर प्लस वी एल वैक्टर है। वी सी वैक्टर प्लस वी एल वैक्टर है। ये वी आर वैक्टर है, ये वी सी वैक्टर प्लस वी एल वैक्टर है। ये क्या है, वी वैक्टर है। इसका रिजल्टेंट कितना है, वी आर एम है। इसका रिजल्टेंट क्या है, वी सी एम माइनस वी एल एम है। इसका रिजल्टेंट कितना है, वी एम है, ठीक है। नाउ ये एक्स एक्सिस है, तो इसके साथ जो एंगल होता है ये एंगल कितना होता है, ओमेगा टी। और वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना होता है, फाई होता है। वोल्टेज ये हो गया, वोल्टेज ये हो गया करंट, इनके बीच में एंगल कितना है, फाई है। और ये अगर एक्स एक्सिस है तो इसके साथ इनिशियली वोल्टेज फेज़र कितना एंगल बनाता है, ओमेगा टी। सो वी इक्वल टू क्या है, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसका मतलब वोल्टेज के साथ एंगल कितना है, ओमेगा टी है। और करंट के साथ एंगल कितना है, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई है। इसका मतलब आई एम के लिए एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई है। सो आई के लिए ओमेगा टी प्लस फाई है। आई इधर क्यों है, क्योंकि रजिस्टर की तरफ करंट जाता है ना, तो करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। कहाँ पे देखा है हमने, यहाँ पे देखा है, ठीक है। सो दिस इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेजेस ऑफ सोर्स, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड द करंट फेजर इन द सर्किट। सबको एक फिगर में हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। तो अभी पोज मारिए, इसको लिखिए जल्दी जल्दी। यहाँ पे रोटेशन ऑफ वेक्टर देना बहुत ज़रूरी है, रोटेशन ऑफ फेजर्स। हो गया,
एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से सुनना, ठीक है। ये एनालिटिकल है, एनालिटिकल इन द सेंस ये चैप्टर पूरा मैथमेटिकल है, इसका एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, बिना समझ के आप इसको कुछ नहीं कर सकते। सो इसीलिए आप इसको समझने में समय लगाना, सारे एक्सप्लेनेशन को सुनना। एक फिगर को ड्रॉ करने के लिए कभी कभी मैं 10 मिनट 12 मिनट लगा देता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर करके इसको सिखा रहा हूँ। तो आपको वो एक्सप्लेनेशन सुनना है अच्छी तरीके से। अगर आपको फिज़िक्स पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, देन इट इज़ योर विश, योर लाइफ। एज टीचर my responsibility is to tell you, to remind you again and again. It is not one time, I have to remind you again and again. That I am doing. Remaining is your choice. तो ये जो ये जो ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है? इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा देखो, ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। सो दिस इज 90 डिग्री है। ये जो मेरा ट्रायंगल है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? VRM है। ये जो साइड है, इसका मैग्नीट्यूड VRM है। ये क्या है? VCM माइनस VLM है। और ये मेरा क्या है? सोर्स है, इसका पीक वोल्टेज कितना है? VM है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? पहले एम्पलीट्यूड्स को निकाल देंगे। द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वोल्टेज across resistor, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड कैपेसिटर लिख लो, ये तीनों ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड कैपेसिटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सो व्हाट आर द वोल्टेजेस? अगर रजिस्टर का वोल्टेज बोलता हूँ VRM, इसका मतलब पीक वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। सो V का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है। अगर मैं VR बोल रहा हूँ, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर है। M है, इसका मतलब पीक है। पीक होगा तो करंट भी क्या होगा? पीक होगा। उसके साथ क्या आएगा? रेजिस्टर आएगा। सो VRM को मैं क्या लिख सकता हूँ? इट इज़ IMR। VLM को मैं क्या लिख सकता हूँ? इंडक्टर का। तो VLM अगर मैं लिखूँ तो इंडक्टर का करंट क्या होगा? पीक करंट तो सही में IM है। इंडक्टर के लिए R की जगह पे XL आ जाएगा। सो इट विल बी IM XL। एंड अगर मैं कैपेसिटर का बोलता हूँ VCM, तब ये क्या हो जाएगा? इट इज़ IM और इसके साथ क्या आएगा? XC। सो इट इज़ IM XC आएगा। सो दीज आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। नाउ वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? इट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या देगा? VM स्क्वायर विल बी इक्वल टू VRM स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM स्क्वायर। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? VM स्क्वायर विल बी इक्वल टू VRM। इट इज़ VRM इज IMR स्क्वायर प्लस VCM इज IM XC माइनस VLM इज IM XL होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज़ IM स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? IM स्क्वायर, इससे भी आएगा IM स्क्वायर, इससे भी आएगा IM स्क्वायर। तो IM स्क्वायर को बाहर कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? XC माइनस XL होल स्क्वायर। IM स्क्वायर, XC माइनस XL को अलग कर दिया मैंने, तो XC माइनस XL होल स्क्वायर रह जाएगा और इससे मैंने IM स्क्वायर को अलग कर दिया है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? IM स्क्वायर। IM को अच्छी तरीके से लिखना, I इज़ द करंट और M जो है ये इसके साथ सफिक्स में है। सो IM स्क्वायर, इसके साथ ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ आवर VM स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए। तो अगर मैं लिखता हूँ IM स्क्वायर, तो IM स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट विल बी VM स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। IM स्क्वायर विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ से अगर मैं IM को निकालता हूँ पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो ऊपर में मुझे क्या आएगा? ऊपर में आएगा VM और नीचे में आएगा
आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, तो नीचे में आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन फिगर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको उड़ा सकते हैं। Now we can write Im. What will be Im? Im is equal to Vm. नीचे में जो क्वांटिटी है इसको मैं लिख सकता हूँ Z, तो ये हो गया आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्मूला। Im is Vm by Z, वेयर ये जो Z है ये आपको नया मिला है अभी, वेयर Z is equal to अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। ये जो Z है, Z is called impedance of circuit. Z is called इम्पिडेंस, इसको कहा जाता है इम्पिडेंस ऑफ सर्किट। तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज करंट, आई इज इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, आई इज इक्वल टू क्या होता है V बाई XL, आई इज इक्वल टू क्या होता है V बाई XC, आई इज इक्वल टू क्या होता है V बाई Z। ठीक है, तो ये रजिस्टर के लिए, ये इंडक्टर के लिए, ये कैपेसिटर के लिए, ये कम्बिनेशन के लिए, यहाँ पे हमने कंबाइन किया है आर एल सी तीनों का, तो तीनों का मिला के जो ड्रॉप होगा उसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। आर का ऐसा यूनिट क्या होता है ओम, इसका ऐसा यूनिट ओम, इसका ऐसा यूनिट ओम, जेड का भी ऐसा यूनिट क्या होगा ओम होगा। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज ओम, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज ओम, इसका भी ऐसा यूनिट ओम ही होता है। Now if XC minus XL is greater than 0, XC minus XL greater than 0, इसका मतलब क्या है, XC बड़ा है और XL जो है छोटा है, the circuit is capacitive, the circuit is capacitive। इसका मतलब अगर सर्किट इज कैपेसिटिव, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से बड़ा हो तब क्या हो जाएगा, जो ओवरऑल सर्किट है वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैपेसिटिव सर्किट की तरह रिएक्ट करेगा। इफ XC माइनस XL इज लेस देन 0, द सर्किट विल एक्ट एज इंडक्टिव, सो द सर्किट इज इंडक्टिव। अगर XL बड़ा होगा XC छोटा होगा तो आपका सर्किट कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह, और अगर XC बड़ा होगा XL से तब आपका सर्किट कैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटिव की तरह। ठीक है, तो यहाँ से हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट मिल गया है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे फेज रिलेशनशिप। फेज रिलेशनशिप को निकालने के लिए और एक फिगर है, दैट इज कॉल्ड फेज एंगल and impedance diagram, means we'll use a diagram that is impedance diagram. Using impedance diagram we'll find out the phase angle. Till then आप इसको क्या कीजिए, पोज मारे, जल्दी लिखिए। हो गया, हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हमें क्या चाहिए, Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब हमें चाहिए Im हमने अभी निकाल दिया है, और क्या चाहिए, फाई चाहिए। फाई का मतलब क्या है, फेज एंगल चाहिए। तो फेज एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इम्पेडेंस डायग्राम। सो आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, इट इज़ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फेज एंगल and impedance diagram. So we'll use impedance diagram to find out the phase angle. So impedance diagram क्या होता है, impedance diagram कुछ नया चीज़ नहीं है। अगर आप ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, तो ये क्या है, ये आपका XC माइनस XL है, दिस इज XC माइनस XL है, और ये जो बेस है, बेस जो है वो आपका रजिस्टर है, दैट इज़ रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस का ड्रॉप है, ये कैपेसिटर माइनस इंडक्टर का ड्रॉप है। इनको मिलाने से जो हमें टोटल ड्रॉप मिलता है, कौन सा मिलता है, टोटल ड्रॉप जो है वो Z मिलता है। आप अगर वेक्टरिकली सोचेंगे, जैसे मान लो एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, VR वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, VC वेक्टर प्लस VL वेक्टर है। तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं। इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, V वेक्टर है। ठीक है, तो रिजल्टेंट ड्रॉप जो है वो क्या होगा, Z होगा। ये रेजिस्टर का ड्रॉप है, और ये क्या है, इंडक्टर कैपेसिटर माइनस इंडक्टर का ड्रॉप है, मीन्स दोनों का ड्रॉप है एक साथ मिला के।
और इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल इज़ फाई। सो यहाँ से अगर हम लोग लिखते हैं tan फाई, व्हाट विल बी tan फाई? tan फाई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज XC माइनस XL बाय बेस, व्हाट इज बेस? बेस इज R। सो व्हाट विल बी फाई? फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फेज एंगल, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे देन व्हाट विल बी tan फाई? tan फाई विल बी इक्वल टू VCM, VCM XC का पीक वैल्यू क्या होता है? VCM। VCM को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज, अच्छा ऐसे मैग्नीट्यूड में बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी VCM माइनस VLM XC माइनस XL डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा? VRM। और इनका वैल्यू में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? IM XC माइनस IM XL डिवाइडेड बाई IMR। तो IM कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R। वही फार्मूला मिलता है ना, तो इसका मतलब वही फार्मूला है, ठीक है, और नहीं चाहिए। ये एक रिलेशन है, ऐसे लिख के रख लो, मीन्स आपका समझ में आएगा इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, और एक चीज़ हमें चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड फेजर डायग्राम। फेजर diagram. So what is the phase relationship between voltage and current that can be represented using phasor diagram? तो हम लोगों ने ऑलरेडी फेजर डायग्राम पढ़ा था फॉर रेसिस्टर, फॉर इंडक्टर एंड फॉर कैपेसिटर। नाउ विल स्टडी इट फॉर LCR circuit. Suppose we have an instantaneous voltage, so this is the instantaneous voltage curve, और इंस्टेंटेनियस करंट कर्व को मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये एंगल कितना है? π/2 है, ये 3π/2 है, तो यहाँ पे π/2 नहीं, थोड़ा आगे कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है? तो ये हो गया वोल्टेज वेवफॉर्म, दिस इज़ द वोल्टेज वेवफॉर्म। अच्छी तरीके से देखो, ये वोल्टेज वेवफॉर्म है और ये मेरा क्या है? दिस इज़ माय करंट वेवफॉर्म। सो दिस इज़ द करंट वेवफॉर्म। वोल्टेज का पीक वैल्यू कहाँ है? वोल्टेज का पीक वैल्यू है यहाँ पे। सो दिस इज़ द पीक वोल्टेज, और करंट का पीक वोल्टेज कहाँ पे? यहाँ पे है। सो ये हो गया करंट का पीक वोल्टेज। इन दोनों पीक के बीच में एंगल कितना है? फाई है। सो व्हाट इज फाई? इट इज़ द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, मीन्स दोनों पीक के बीच में मैंने एंगल ले लिया। तो ये हो गया मेरा करंट वेवफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एंगल कंसिडर करता हूँ, आई विल कंसिडर एन एंगल। तो ये कंसिडर किया मैंने एंगल। अब इसके लिए अगर मुझे फेजर डायग्राम चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं? जहाँ पे वोल्टेज कट हुआ है, कहाँ पे कट हुआ है? यहाँ पे। तो यहाँ से वोल्टेज से आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे मान लो, और करंट कहाँ पे कट हुआ है? यहाँ पे। तो यहाँ से करंट का एक लाइन खींच लो। ये सर्किट जो है, ये सर्किट हमने क्या कंसीडर किया है? XC माइनस XL। इसका मतलब XC जो है वो XL से बड़ा है। इसका मतलब सर्किट कैसा है? कैपेसिटिव है। कैपेसिटिव होने से करंट जो है आगे होता है, वोल्टेज जो है पीछे होता है। तो मैं अगर मान लेता हूँ ये मेरा कौन सा है? ये वोल्टेज वेवफॉर्म का है। सो दिस इज़ माय वोल्टेज, और करंट आगे होता है, तो करंट को मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। तो करंट आ गया यहाँ पे, करंट फेजर। ये वोल्टेज फेजर है, ये करंट फेजर है। वोल्टेज और करंट फेजर के बीच में एंगल कितना है? वोल्टेज और करंट फेजर के बीच में एंगल फाई है। और ये एंगल कितना है? वोल्टेज जो है इनिशियल एंगल कितना बनाता है? ओमेगा टी एंगल बनाता है। सो वेयर इज ओमेगा टी? सो दिस इज द एंगल ओमेगा टी। रोटेशन ऑफ फेजर कैसा है? ऐसा है। और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फेजर रिलेशनशिप। इट इज द फेजर रिलेशनशिप, फेजर रिलेशनशिप बिटवीन V and I, that is current and voltage, for series LCR circuit, series LCR circuit, इन ब्रैकेट यू राइट कैपेसिटिव। तो यहाँ पे हमारा सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है? कैपेसिटिव बिहेव कर रहा है, मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है। और ये क्या है? दिस इज़ द वेव फॉर्म्स ऑफ V एंड I। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट वर्सेस ओमेगा टी। तो इधर हमारा एंगल है ओमेगा टी, और इधर हमारा वोल्टेज है या फिर करंट है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट है, ठीक है।
तो इसके साथ हमारा जो ये क्लास है फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, दैट इज देयर आर 2 मेथड्स फॉर सॉल्विंग एन एसी सर्किट यूजिंग एसी सर्किट अप्लाइड एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट। इसको सोल्व करके इंस्टेंटेनियस करंट और फेज एंगल को निकालने के लिए 2 मेथड है, एक है फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, दूसरा है एनालिटिकल सॉल्यूशन। इस क्लास में हमने पढ़ा है फेजर डायग्राम सॉल्यूशन मेथड, आगे का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड। नाउ फेजर डायग्राम सॉल्यूशन मेथड जो है वो उतना करेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट दैट मच एक्यूरेट। ये सिलेबस में है इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, तो इतना एक्यूरेट नहीं है, सिलेबस में एग्जाम में भी आ सकता है 5 मार्क के लिए। एंड एनालिटिकल सॉल्यूशन जो है इट इज़ मच एक्यूरेट, वो मैथमेटिकल है। एनालिटिकल सॉल्यूशन में आपका स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट दोनों स्टेट को मिला के पूरा सर्किट को सोल्व किया जाता है मैथमेटिकली, ठीक है। तो एनालिटिकल सॉल्यूशन में हम लोग जाके देखेंगे इस मेथड, ये मेथड जो है ये भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इस लेक्चर को सुनना, यहाँ पे फेजर डायग्राम है, यहाँ पे वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ये सारा रिप्रेजेंटेशन को सुनना, एनसीईआरटी को सामने रख के देखना और फॉलो करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन माई चैनल प्लीज़ शेयर माई चैनल with your friends and relatives. Thank you for watching my videos. Thank you. Bye bye.